Hello students, today we are going to take the next component of physical fitness, that is endurance. We have studied about strength, speed. So this is the third component of physical fitness, that is endurance, जिसको हम very commonly या unscientifically जिसको हम stamina भी बोलते हैं. So that is endurance, but experts have told that endurance is the correct word. Now endurance you can define it as an ability to resist fatigue and sustain any activity for a longer duration of time. Fatigue means exhaustion, till you get exhausted. ठीक है, आप जब भी लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटी करते हो, फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग, then after a certain round, after traveling a certain distance, you start feeling fatigue, exhaustion, tiredness आना शुरू हो जाता है. ठीक है, now उस टायर्डनेस को आप कब तक रेजिस्ट कर सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, एंड यू कंटिन्यू दैट एक्टिविटी, दैट इज योर स्टेमिना और योर व्हाट यू कॉल्ड इट टेक्निकली इज एंड्योरेंस. So it is the ability to continue any activity under fatigue conditions, exhausted condition, tired conditions में जब आप activity को continue करते हो, that is your endurance, and it is very important component for almost all the games and sports. Now it is applied in some of the important games and sports, that is long distance and middle distance running. जैसे 1500 के बाद जो शुरू होते हैं रेसेस टिल 10,000 किलोमीटर्स, मैराथन आपका है, ठीक है, रोड साइकिलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रोड साइकिलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग, ये सारे चीज़ जो है इसमें आपका एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना चेक होता है और वो ज़रूरी है. Now endurance is determined by the working capacity of an individual's muscles. कि muscles का capacity कितने देर तक वर्क करने का है, that is the endurance. दूसरा है degree of resistance against fatigue. ठीक है, कितना लेवल fatigue का, कितना exhaustion आप बर्दाश्त कर सकते हो. So degree of resistance against fatigue, not factoring but it is fatigue. And environmental conditions, कौन से environmental conditions में आप कितना fatigue resist कर. For example in summer में अगर आप running करो, then after traveling a certain distance, after continuing it for a certain distance, you feel exhausted, you feel dehydrated. ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर आपका जो है वो एक तो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हाई रहता है और बहुत तेज़ी से रेज हो जाता है. सो इन सच कंडीशंस ऑल्सो हाउ वेल यू आर अडेप्टिंग योर बॉडी और हाउ वेल यू आर रेजिस्टिंग द फैटिग, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ एंड्योरेंस. एंड लास्टली द पेस ऑफ रिकवरी आफ्टर एग्जॉशन, कितनी जल्दी आप रिकवर होते हो. For example, after running 10 rounds of 400 meters, ठीक है, आप कितनी जल्दी, कितनी फास्ट, क्योंकि आप 3 राउंड भी लगाते हो अपने स्कूल्स के ऑफ अराउंड 150 मीटर्स. ठीक है, तो जैसे ही आप रुकते हो, यू ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस, योर हार्ट रेट इंक्रीजेस. सो हाउ रिकवरी रेट मीन्स हाउ वेल you come down to the normal breathing rate, to the normal heart rate. That is also your endurance, that also determines your endurance. कि recovery period आप कितना लेते हो to come back to the normal. Clear? Now it can be measured, endurance को आप measure कर सकते हो through the number of repetitions of single type of movement. एक movement आप कितनी देर तक, कितने duration तक आप करते हो, तो वो भी एक तरीका है एंड्योरेंस को मेजर करने का, जैसे टेकिंग सर्कल्स, टेकिंग राउंड्स.
ठीक है, एक डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है, 150-200 मीटर्स का ट्रैक है, उस पर आप रिपीटेडली एक ही चीज़ करते हो. डम्बल्स में वेट आपने कम ले लिया लेकिन रिपीटेशंस आपने बढ़ा दिया. फॉर एग्जाम्पल 1 kg 1.5 kg का डम्बल्स आपने ले लिया या 5 kg का डम्बल्स ले लिया, लेकिन रिपीटेशंस उसको 100 कर दिया. So you'll find that after reaching 25 to 30, it will be more difficult for you to lift the dumbbells. ठीक है, so repetitions, number of repetitions बढ़ा देना या duration बढ़ा देना, that is the way you can measure the endurance of a person. So it is the individual's capability to perform any type of task repeatedly over an extended period of time. So this is endurance. These are the definitions of endurance. Next, if we see, so basically there are two types of endurance. Endurance को हम बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेजर जो है वो दो कैटेगरी में वो डिवाइड होता है. एक है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, ठीक है, जिसको हम एरोबिक या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी बोलते हैं. ठीक है, दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, जिसको हम एनएरोबिक और मस्कुलर एंड्योरेंस भी कहते हैं. नाउ लेट अस सी द डेफिनेशंस और अबाउट द लॉन्ग टर्म या एरोबिक या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. Now, in this type of endurance, the activity is performed for longer duration. Activity जो है sports activity या अगर ट्रेनिंग में आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो एक्टिविटी जो है वो लंबे समय तक होती है. एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी इज़ वेरी स्लो. फॉर एग्जाम्पल जॉगिंग. जॉगिंग जब आप करते हो तो जॉगिंग ज़्यादा समय तक करते हो, लेकिन स्पीड आपका जो है वो कम होता है. सो इन दिस type of endurance, ठीक है, या this type of endurance is used in the activity where we need to perform the activity for a longer period of time, but the intensity of that activity is very low. Now, in other words, long-term endurance is required in sports activities in which the intensity of force applied is less, but the duration is लॉन्गर. ठीक है, जहाँ पर एक्टिविटी को लंबे समय तक करना है बट इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी जो है, स्पीड ऑफ द एक्टिविटी जो है, ठीक है, उसको कम कर देना है. नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस. जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस है, 5000, 10,000 मीटर, 5000 मीटर, 3000 मीटर, 1500 मीटर, इन सारे में, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग, उसमें भी रोड साइकिलिंग, मैराथन रेस, क्रॉस कंट्री रेस, ये सारी एक्टिविटीज़ में आपका लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस अप्लाइड होता है, यूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकेंड टाइप, दैट इज शॉर्ट टर्म एनारोबिक या मस्कुलर एंड्योरेंस. नाउ इन दिस टाइप ऑफ एंड्योरेंस, एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी, एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी उस एक्टिविटी को बोला जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ नहीं किया जाता, एक ही सांस में दौड़ना. ठीक है, तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो हमारा रिजर्व रहता है एनर्जी हमारे बॉडी में, दैट इज ग्लाइकोजन, वहाँ से एनर्जी यूज़ होता है. The second type of endurance is short-term anaerobic muscular endurance. Now, in this type of endurance, anaerobic type of activity is done where the intensity of the activity is very fast, but the duration of activity is short. Now, what is anaerobic type of activity? Aerobic type एक्टिविटी होता है जहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ होता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी. मतलब जब आप एक्टिविटी करते हो तो आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो. सो दैट इज़ एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी, जैसे हम जॉगिंग करते हैं. सेकेंड इज एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पर बिल्कुल भी आपका ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता.
ठीक है, मतलब एक ही सांस में जब आप 50 मीटर स्प्रिंट मारते हो, दैट इज योर एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एक ही सांस में। नाउ व्हेन अगर आप ब्रीथिंग नहीं करते हो, आप सांस नहीं लेते हो, ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगा, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा? लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है आपका एनर्जी रिजर्व से, ग्लाइकोजन से, विच इज स्टोर्ड इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, सो एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। So this type of activity is done, and the intensity of the activity is very fast, but the duration of the activity is short. Now short-term endurance is required to resist fatigue, where the action lasts for short period of time. ठीक है, कोई भी एक्शन आपका होता है वो कम समय तक होता है। जैसे थोड़े डिस्टेंस तक आपको दौड़ना है, 50 मीटर स्प्रिंट है, तो आपका ड्यूरेशन जो है वो कम होता है, बट द इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी और द इंटेंस इन टर्म्स ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाइड आपको करना है वो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे फोर्स अप्लाई आपको ज़्यादा करना होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस, जहाँ पे फोर्स अगर आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़े, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, पूरी एक ही सांस में पूरी ताकत के साथ आपको दौड़ना है, एनर्जी आपको पूरा यूज़ करना है, वहाँ पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव लॉट ऑफ फैटिग, एंड इट कॉजेस ऑक्सीजन डेप्ट। ऑक्सीजन डेप्ट मीन्स, ठीक है, ऑक्सीजन डेप्ट मीन्स कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। एक तो विदाउट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू परफॉर्म दैट एक्टिविटी फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड योर बॉडी, ग्लाइकोजन। ठीक है, देन इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी इज वेरी हाई, सो इट कॉजेस ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। इसीलिए जब आप कोई भी इंटेंस एक्टिविटी करते हो तो आप देखते हो कि आपका ब्रीथिंग रेट बहुत ही तेजी के साथ चलता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सप्लाई दैट ऑक्सीजन टू द बॉडी, टू द मसल्स विच इज यूज्ड, विच इज एग्जॉस्टेड, उस मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना ताकि वो रिकवर हो सके जल्दी से। सो दैट इज वाई योर ब्रीथिंग रेट गोज फास्ट, योर हार्ट रेट गोज वेरी फास्ट टू सप्लाई दैट ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स। नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हर एक गेम्स में आपको इस तरीके की एक्टिविटी करनी होती है जहाँ पर आपको तेज़ी से दौड़ना होता है, तेज़ी से रिफ्लेक्सेस शो करने पड़ते हैं, तेज़ी से स्किल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तेज़ी से मूवमेंट, आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ सकती है। सो हर एक फास्ट मूवमेंट्स के लिए आपको एनारोबिक टाइप ऑफ एंड्योरेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस चाहिए, मस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग स्विमिंग, शॉर्ट डिस्टेंस रेस, आपका स्प्रिंट है, 100 मीटर स्प्रिंट है, 200 मीटर, 400, 800 मीटर स्प्रिंट तक भी आपको ये शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस चाहिए। फिर कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स जहाँ पर है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है बॉडी का, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ये सारे स्पोर्ट्स जो है उसमें भी आपको शॉर्ट टर्म या एनारोबिक टाइप ऑफ एंड्योरेंस चाहिए। ठीक है, सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट एंड्योरेंस। सो I hope that you have understood the topic. Still, if you have any doubt, you can mention your doubt in the group so that I can solve it out. Or you can personally also send messages regarding your doubts. So that's all for today. Thank you.